So, good morning and welcome to this. Good morning and welcome to this wonderful, awesome, and full of learning session with one and only Mr. Amol Muley. Please allow me to introduce him to all of you. He is an international speaker, founder director of Liberation Coaches Private Limited, and throughout his 25 years long journey, he has transformed 1,000 companies in 40 different industries. And I believe he must have touched more than 1 lakh lives through his coaching and training. He is an avid traveler, he is a lover of life, and he is author of 4 books. He has been awarded very recently the G. Mahasamman 2024 award also. He is a visiting faculty at NMIMS, Amethi, Mumbai, and at several places. He trains, he coaches, he talks, and he is a master trainer. So, welcome to Jaipur Institute of Management, Jaipur, sir. Welcome to this course, Public Speaking and Persuasion. And I know and I hope that my students are going to learn and remember this guest session for the next 10 years when they are aiming for leadership and high positions in their corporate life. Over to you, sir. Okay, great morning to all of you. Am I audible, Dr. Saab? Yes, you are audible. Okay, how do I know whether the students can hear me or not? Because I think I can only see you, but not the students. No, students are as participants because they are 300, around 300. So if we invite them as panelists, then the screen would not look very good. That's why. Okay. Yes, they are there and they will start asking questions also. So we will get to know that yes, they are there and listening. Okay, cool. That's interesting. Because I thought they will also be visible. So great morning to all of you, and thank you, Dr. Sharma, for inviting me. But let me be very honest in stating that you exaggerated my introduction a bit, and I must tell you कि जब आपने मुझे संपर्क किया, मेरे मन में पहला सवाल यही था कि आपके होते हुए मेरी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब. You've been taking this course and you've been driving this course. मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ऑनलाइन मैंने जाकर के, और मैंने देखा कि इसका कोर्स का जो भी सिलेबस है, डिजाइन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. बल्कि इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा इतने आजकल डेडिकेटेड कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कर रही है. तो मैं आपके इंस्टीट्यूट को, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ. It's a great initiative, and I'm sure your students are learning tremendously from it. So let's begin. मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ना आदत है, देखिए साहब, I have spent 20 years in the field of training, and for all these years I've had the habit of having students in front of me, participants in front of me. ये तो वो लॉकडाउन के जमाने से ऐसा हुआ है कि we've been talking to screens, और अभी पूरी तरह से I'm still not accustomed to it. मैं पूरी तरह से उसको आदी नहीं हुआ हूँ. तो आज मैं पूरा प्रयास करता हूँ. आज मैं ऐसा समझूंगा कि मेरे सामने एक डॉक्टर साहब ही है, इन्हीं से बात कर रहा है और इन्हीं के साथ चर्चाएं करनी है. हालांकि डॉक्टर साहब विश्वास दिला रहे हैं कि और 100-125 स्टूडेंट्स भी है. तो चलिए इन सभी का स्वागत करता हूँ. I'm going to use a combination of Hindi and English for this session. I hope all the participants are okay with that. Do we have any students, Dr. Saab, who do not understand the word of Hindi as such? No, you can use English, you can use Hindi. Students are comfortable with both the languages. Thank you so much. I'll also share my slides. Right now I'm being helped by Shashankji, who's a dear colleague. In fact, I would like to clarify, I'm right now not in my office, and this is a very beautiful office of one of our would-be clients. These people have been very, very kind to me. कि आज मुझे इन लोग के साथ मिलना था, and they have opened up their conference room for me so that I can address the students and then continue with the meetings here. So thanks are also due to the Luthra, the group, which is an amazing group based out of Surat in Gujarat. So let's begin. Dr. Saab, मैं शुरुआत करता हूँ. आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे. जब मैंने आपसे पूछा था, I had asked you कि साहब
आपके स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपसे इन विषयों को सीख रहे हैं. They're learning public speaking, they're learning communication, they're learning presentation, they're learning so many topics from you and your other faculty, your esteemed faculty from the country, from the industry. तो भाई मुझसे क्या अपेक्षा है, मैं क्या सिखा सकता हूँ, मैं क्या विशेष कर दूंगा. और आपने मुझसे कहा कि मैं आपको एक क्वेश्चन भेजता हूँ, आप अपने टॉक को इसके इर्द गिर्द रख सकते हैं. राइट. सो आई गो टू दैट क्वेश्चन. हालांकि मैंने एक पीपीटी भी उसके इर्द गिर्द तैयार किया है. तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी की वजह से वो पीपीटी आने में 2 मिनट हमको लगेंगे. तब तक मैं आपके क्वेश्चनेयर पर वापस जाता हूं. लेट्स बिगिन. आपका सवाल जो है पहला. हाँ, आपने लिखा है डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि प्लीज टेल अस अ बिट अबाउट योर बैकग्राउंड, where did schooling and college happen, and when did you decide to be a master trainer? That's an interesting question because I never decided to be a master trainer, and I'll tell you that. But yes, I would love to tell a quick background Can of I my. add something here, sir? है ना? Yes, sir. So generally, training is one field which people used to think that when people retire हाँ in सर, हाँ सर, corporate life, they will become trainers. हाँ सर, हाँ सर. है ना? And it was not a very conscious choice, especially 15, 20 years ago when you started. People were Right. not consciously trying to become the trainer. जी सर, जी सर. So when did this idea come into your mind and how was that journey? We would like to know. बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा सर. आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड कि आपने ये सवाल पूछा है. So, Dr. Saab, I'll begin answering this question. I'll take you a bit to the background और उसी में इस सवाल का जवाब भी छुपा है. I was born and brought up in a small town in the interiors of Maharashtra called Wardha. Wardha is an adjacent district to the city of Nagpur. और हमारा शहर छोटे से भी छोटा शहरों में से एक है. और हमारे मतलब उस जमाने की बात ये थी कि पूरे शहर में अगर कोई इंग्लिश में बात कर ले तो पूरे गांव में चर्चा हो जाए, ऐसी कहानी थी. तो आप और हम बिल्कुल ऐसे ही कस्बों से निकले हैं और एक कस्बे से निकला हुआ व्यक्ति हूं मैं. एंड but luckily I was very lucky. I was born and brought up in a family where reading was encouraged, studying was encouraged, and somehow or the other books were always lying in my house. So by the time I was 8 and 9 years old, I had already finished say entire Nehru and Gandhi and Tolstoy and all. So I was an avid reader. But इसके साथ साथ एक और चीज घटी. बचपन से ही स्टेज पर जाने का मौका मिला. हमारे महाराष्ट्र में थिएटर का जो कल्चर है डॉक्टर साहब बहुत स्ट्रांग है. मतलब प्रोफेशनल थिएटर का कल्चर तो स्ट्रांग है ही. हमारे छोटे छोटे शहरों में भी एकांकिका स्पर्धाएं होती है. एकांकिका आर वन एक्ट प्लेज, टिपिकली 35-40 मिनट के प्लेज होते हैं. लोग अपने खर्चे से प्रैक्टिस करते हैं, अपने खर्चे से तैयारियां करते हैं और अपनी अपनी टीम्स बना करके इन कॉम्पिटिशन्स को ले जाते हैं. और पूरे महाराष्ट्र में साल भर ये तांता लगा रहता है. तो बचपन में ही माता पिता ने स्टेज पर धक्का दे दिया और स्टेज से जुड़ने का मौका मिला एक बाल कलाकार के रूप में. मैंने कई सारे नाटकों में, कई सारे थिएटर्स में काम किया. और उसका ब्यूटी ये है ना, when you worked on the theater, जिसने किसने भी थिएटर में काम किया है वो मेरी बात को समझेगा जब मैं कहता हूं कि उसका अपना एक नशा है. खास करके तब जब आपने अभी अभी एक मोनोलॉग डिलीवर किया है और उसके बाद अंधेरा हुआ है. बिकॉज थिएटर्स में साहब लाइट सारा स्टेज पर होता है डॉक्टर साहब. आपके सामने कितने बैठे हैं, कौन बैठे हैं, आपको पता नहीं होता. आप बस दिल से परफॉर्म करते हैं. तो ये कई बार घटता था डॉक्टर साहब कि आई वुड डिलीवर अ पीस और उसके बाद में देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ साइलेंस एंड द एंटायर ऑडियंस इरप्ट्स इन एन एप्लॉज. वो ऑडियंसेस खचाखच भरे हुए होते थे और वो जो तालियों की गूंज होती थी डॉक्टर साहब, वो कई सेकंडों तक चलती थी. उस गूंज का नशा है, उस गूंज का अपना एक एक्साइटमेंट है. जिसने उस नशे को जिया है ना डॉक्टर साहब, वो बार बार उस नशे को जीना चाहेगा, उसको पीना चाहेगा. उस नशे के सामने बाकी सारे नशे बड़े फीके मालूम होते हैं, बड़े ओछे मालूम होते हैं. And what happened was, after passing my 10th standard with good marks and all,
I wanted to pursue education in arts. मैं आर्ट्स पढ़ना चाहता था, मराठी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना चाहता था, डॉक्टरेट करना चाहता था, थिएटर पर जाना चाहता था। लेकिन थिएटर सपनों तक ही ठीक है। एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आने वाले व्यक्ति के लिए आप भी जानते हैं कि उसके घर वाले क्या कहेंगे। और हमारे परम पूज्य पिताजी ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही डायलॉग मारे जब मैंने कहा कि मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। तो फादर ने कहा इसको भीख मांगने के सपने लगे हैं। so I was kind of tutored to take up science. साइंस तो ले लिया साहब, और उसके बाद मन में ऐसे सपने भरे गए, मेरे नहीं थे। नाउ आई रियलाइज व्हेन आई लुक बैक, वो मेरे सपने नहीं थे, बट मेरे मन में भरे गए थे। मुझे इंजेक्शंस दिए गए उन सपनों के कि मैंने भी डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। भगवान भला करे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना। मैं डॉक्टर बनता तो अब तक कईयों को मार चुका होता। मैं इंजीनियर बनता तो मैंने कई टावर्स गिरा दिए होते महाराज अब तक। सो इस देश का और इस दुनिया का भला हुआ है कि एक खराब डॉक्टर नहीं मिला है उनको। तो हुआ यूं कि I pursued science education. I graduated in chemistry, botany and zoology from the University of Nagpur. I was a horrible student, but then I was always good in studies, so I passed with good marks. But I still don't know कि chemistry की equations को balance कैसे किया जाता है, और ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े मुझे आज तक नहीं समझ में आता। तो खैर, after graduating in science, then I thought कि I'll pursue a career in research and all. परंतु ये हमारे बड़े भाई साहब का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने जिद की कि मैंने एमबीए करना चाहिए। ये भी जिद से किया गया कार्यक्रम है। मुझे तब एक पैसे को नहीं पता था कि एमबीए क्या होता है, किस किस अचार का नाम एमबीए है, किस पराठे के साथ खाते हैं। I had no clue at all. But since my logical reasoning and my language skills were amazing, and I was fairly good at mathematics, I cracked the entrance test without any kind of coaching. And I was one of the few rankers in the state of Maharashtra. I was a merit holding ranker. And that's how I got admission in the University of Mumbai. I took up human resources management as my specialization. इंटरेस्टिंगली लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि मैं आई वॉज लकी कि मैंने एचआर का मैंने क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन तो किया, बट मेरा करियर सारा का सारा सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में रहा। मेरा पहला जॉब सेल्स में रहा, और मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे वहां पर जॉब दिया और सिखाया और ट्रेन किया। And I joined a company named HECL, Huge Escorts Communications Limited. It was a large multinational, and I was doing very, very well. In fact, I was one of their best salesperson. Out of the 33 centers in India, I was doing the highest number of sales, earning a very good amount of incentives, and I was growing very, very well. लेकिन जिसको थिएटर का कीड़ा काट जाता है साहब, वो छूटता नहीं है। And somehow there was some kind of dissatisfaction inside, and I was looking for some opportunity to vent out my excitement, I would say, not frustration. And that's when I came across this ad, Dr. Saab. The ad said business development executive cum trainer. Trainer क्या होता मुझे पता नहीं था, लेकिन एड ऐसी थी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कम ट्रेनर। मैं उस कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था ऑलरेडी, बट मैंने फिर भी यहाँ अप्लाई किया। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, ये एड एक छोटे लोकल कंपनी की थी, और ऑब्वियसली मुझे जॉब मिला। मैं वहां मैंने ज्वाइन किया। माय फ्रेंड्स रिडिक्यूल्ड मी, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि क्या कर रहे हो, मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर छोटी सी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, किसी ने तो सुना भी नहीं इस कंपनी का नाम एंड ऑल दैट। बट आई सेड नो, आई स्टक टू माय डिसीजन, और वो एक बहुत अच्छा निर्णय था, बहुत बढ़िया डिसीजन था। लेकिन या और उसके पीछे एक ही कारण था कि ट्रेनर ये नाम सुन के मुझे लगा कि शायद मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा। ट्रेनर करता क्या है मैं जानता नहीं था डॉक्टर साहब। आई वाज ओनली 22, 23 at that point of time, and I joined this company. मैंने इस कंपनी के एमडी को, I joined him as the executive assistant to the MD of the company. सुबह 5 बजे रिपोर्ट करता था मैं इस आदमी को, और रात को 1-1 बजे तक इनके साथ काम करता था। बड़े दुष्ट किस्म के बॉस थे मेरे, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने दुष्ट थे, इतने हठी थे, इतने जिद्दी थे। ही इज माय गुरु, और उनके उनके इस जिद की वजह से, उनके हट की वजह से मैं 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटा काम करने को सीख गया। एंड दैट लर्निंग हैज स्टेड विद मी। मुझे रियलाइज हुआ कि अपने अंदर एक राक्षस है, अपन इतना काम कर सकते हैं, एंड व्हेन आई कैन वर्क दैट मच, व्हाई वर्क लेस, why do less when I can do more? But the entire credit of giving birth to that demon inside goes to my ex-boss and my guru, Mr. Nair.
और मजे की बात ये होती थी कि हम साथ में ट्रेवल करते थे। रात को 1-1:30 बजे मुझे कहीं मुंबई में बांद्रा में छोड़ेंगे, एंड आई यूज्ड टू स्टे एट गोरेगांव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहां से 1-1.5 घंटा लगता है पहुंचने को। एंड ही विल से समथिंग लाइक के तो मैं सुबह 6 बजे अमोल तुमको यहीं से पिकअप करता हूँ। तो आज अपनी जो बात हुई है, आज जिस क्लाइंट को अपन मिलकर आ रहे हैं, तो इसके लिए भी कल अभी तुम सुबह 6 बजे जब आओगे तो एक प्रपोजल बना करके ले आना। प्रपोजल इतने, एंड जस्ट इमेजिन, रात को 1:30 बजे महाराज मुझे छोड़ रहे हैं, सुबह 6 बजे मुझे वापस आना है, कह रहे कि 60 पेज का प्रपोजल बना करके लेकर आइए, है ना। और मैं सोचता था कि अरे भाई साहब, आपका क्या, आप तो घर जाके खाना खा के सो जाएंगे, मुझे तो घर जाके खाना भी बनाना है, कपड़े धोने हैं, मुझे तो ये सारे काम भी करने हैं। बट मैंने वो सब किया, और मैं सुबह 6 बजे प्रपोजल लेकर हाजिर होता था। And because of that learning, Dr. Saab, there was a different confidence that I was exuberating in my entire behavior. लेकिन केवल इतना काफी नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस, आपका अभ्यास, आपका आपका एक्सपोजर, इतनी चीजें केवल काफी नहीं होती। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे चाहिए होते डॉक्टर साहब, जो आपको चैलेंज करें, और जो अपने सवालों से आपके आपको 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 झंझोर दे पूरी तरह से। एंड देयर वाज दिस जेंटलमैन, मेरे एक और गुरु है, मेरे उस समय के सीनियर हुआ करते थे, टैगोर साहब। मैं अपने बॉस को, जो उस समय पर बिजनेस कोच हुआ करते थे, मैं उनको अकम्पनी करता था, और वो सेवरल ओनर्स को कोच करते थे, और वो कई कंपनियों को ट्रेन भी करते थे। आई वॉज 26 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। मैं हमेशा से बहुत अच्छा वक्ता रहा, बिकॉज बचपन से ही माँ ने स्टेज पर धक्का दिया था, और स्टेज का एक स्टेज की जो मोहब्बत है, स्टेज के संबंध में जो प्रेम है, वो बचपन से पैदा हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं अपने आप को कोच या ट्रेनर समझने लग गया था। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है कि टैगोर साहब ने मुझे एक दिन कहा कि यार अबुल, तुम्हारा अभ्यास बहुत अच्छा, तुम्हारा एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तुम अपने क्लाइंट्स के चैलेंजेस को समझते हो, व्हाई डोंट यू स्टार्ट कोचिंग अ फ्यू बिजनेस ओनर्स योरसेल्फ। मैं इस सवाल पर हंसा, मैंने कहा क्या टैगोर साहब कुछ भी कह रहे हैं, मेरी उम्र 26 साल है, जिन क्लाइंट्स के साथ हम डील करते हैं उनमें से सबसे यंगेस्ट 50 का आदमी है ना, जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा इनका अनुभव है, ये मुझे क्या खड़ा करेंगे। इस पर टैगोर साहब ने जो कहा वो मुझे आज भी याद है, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को ऐसे सवाल अपने आप से पूछने चाहिए, या ऐसे व्यक्ति अपने इर्द गिर्द रखने चाहिए जो आपके और मेरे जीवन में ऐसे सवाल उठाए। पीपल हु हैव द एबिलिटी टू रेज क्वेश्चंस, एंड पीपल हु हैव द विल टू रेज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ही सेड कि अमोल, आप कहते हैं कि आप 26 के हैं, तो कोई 50 साल का आदमी आपसे कोचिंग क्यों लेगा। ये बात आपने कही, लेकिन क्या किसी 50 साल के आदमी ने आपसे ये बात कही है? लाइक, साले इस सवाल में तो दम है, बिकॉज मैं किसी क्लाइंट के पास गया तो था ही नहीं उस तक। मैंने तो अज्यूम कर लिया कि nobody will take coaching from me, nobody will consider me a trainer, and thanks to a gentleman like Tagore Saab who raised this challenge। तो अभी ये स्टूडेंट्स हमारे जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनको उनको कहूंगा, मैं उनको बधाई दूंगा, if they have somebody in their life who's challenging them, who, if they have an elder brother, if they have a cousin, if they have a teacher, if they have a mentor like Dr. Sharma or other faculties who are challenging them, then I must congratulate you all। And if there are no people in your life, if you have friends only who are saying नहीं नहीं जाने देना, क्यों तकलीफ उठाता है, तेरे को तो तकलीफ होगी and all that, then you should absolutely beware of that company which is not challenging you। I hope, Dr. Saab, that gives you some peek about what I have done and how I have reached it here। Yes. In fact, आपको मुझे की बात बताता हूँ, when I started coach, and then I approached, I said ठीक है चल, let me experiment। और मजे की बात, मेरे पहले स्टूडेंट 52 ईयर ओल्ड आदमी थे, मैं 26 का था, उनकी उम्र मुझसे दुगनी, उनके बच्चे मेरी उम्र के थे, और वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ सर। एंड और वहां से फिर ये कार्यक्रम चल पड़ा। टुडे आई रन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज टाइटल्ड लिबरेशन कोचेस प्राइवेट लिमिटेड। आपने परिचय में तो कहा ही है। अब मैं क्विकली डॉक्टर साहब आपकी परमिशन से मेरा ये स्लाइड शो शेयर करता हूं, और जो आपने आगे के सवाल पूछे हैं, मुझे लगता है उनके जवाब उनमें आ जाएंगे। ठीक है, ओके, वी कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं क्विकली शेयर करूंगा, आपने मुझे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया है।
Yes, we can see your screen. Visible? Yeah, okay, Yes. cool. Great. Yes. So great morning to all of you again. I'll make it as quick as possible because Dr. Saab ने मुझे 60 minutes दिए हैं, and I think we can have some meaningful conversations in these 60 minutes. और उसके बाद में आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो उनका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा. मेरी मान्यता है कि आज की हमारी पहली मुलाकात है लेकिन आखिरी नहीं होगी, and I'm sure we will keep meeting each other and learning more from each other in the coming days. Let me start. When I asked Dr. Saab what he would want me to speak about, I had set these house rules also, but now these make no sense because the setup is completely different, so I'm fine with that. But I would request my fellow participants here to take notes. It's a classroom, although we are meeting online. My humble request is कि आप notes लेते रहें. आपको कोई भी बात जज गई, आपके दिल को कोई बात छू गई, please write it immediately because I believe that anybody who writes and takes notes consistently are the ones who will go ahead in life. Let me, ये सारी परिचय डॉक्टर साहब ने कर दिया है, so I'll not speak about it. Let me ये बैकग्राउंड की अभी हमने बात की कैसे इनिशिएशन हुआ. हाँ, एक और सवाल डॉक्टर साहब ने मुझसे इसमें पूछा था. ये सवाल मैं आपका पढ़ के सुनाता हूँ. डॉक्टर साहब ने जो ईमेल में भेजा है, he says, हाँ, इनका अगला सवाल था. डॉक्टर साहब आपने पूछा है, यू आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन सेल्स एंड लीडरशिप मैनेजमेंट. ऑन वन हैंड स्टूडेंट्स वांट टू अर्न लोड्स ऑफ मनी एंड ऑन द अदर हैंड दे आर अफ्रेड और हेजिटेंट टू ऑप्ट द रोल्स दैट कैन गिव देम 10x more money as incentives or sales. Why do you think this is so? Yes, I'll answer, Dr. Saab. I'll answer. ये देखिए मेरी स्लाइड क्या कहती है. देखिए मजे की बात क्या है, और हमारे साथ आज we have about, जैसे आपने कहा, about 140 participants are there, and I'm sure when they were kids, 4 and 5-year-old and 6-year-old, इनमें से सभी के सपने रहे होंगे बचपन में. बचपन में हम सबके सपने होते हैं. कोई सुपरमैन बनना चाहता है, स्पाइडरमैन बनना चाहता है, बैटमैन बनना चाहता है. मम्मी के पल्लू को पकड़कर कोई कहता है मम्मी मैं बड़ा होकर के ऑटो रिक्शा चलाऊंगा, कोई कहता है मम्मी मैं सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा. बचपन में सारे सपने आते हैं, अंट सपने आते हैं, है ना. और मैं तो सोल्जर बनूंगा, मैं तो टीचर बनूंगा, ऑल ऑफ दैट. लेकिन मैं आज तक जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला डॉक्टर साहब, और मैंने हजारों और लाखों लोगों को पढ़ाया है, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में मैंने सेल्स की टीमों को पढ़ाया है. मैं आज तक जीवन में ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने बचपन में अपनी माँ के पल्लू को रोकर कहा हो कि मम्मी मैं बड़ा होकर सेल्समैन बनना चाहता. ऐसे व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे व्यक्ति नहीं. सपने सबके बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार का स्ट्रगल करने की तैयारी चाहिए, एक तो उसके संबंध में कोई, बहुतों को तो एजुकेशन ही नहीं. अधिकतर लोगों को तो ये लगता है, एक तो वो प्रकार की प्रजातियां भी है इसी दुनिया में, इसी देश में, जो सपने देखने से भी कतराती है डॉक्टर साहब. There is a huge mass of people who don't even think about or envisage big dreams. And then there is now a set of people जो YouTube के वीडियोस देख करके, यहाँ वहां के वीडियोस देख करके, या 2-4 मोटिवेशनल प्रोग्राम्स देख करके एक्साइट हो जाते हैं और कहते हैं मैं भी कुछ बड़ा करूंगा. तो एक हो गया, चलो अभी मोटिवेशन आ गया, उसको एक्साइटमेंट आ गया, एक बड़ा सपना उसने देख लिया. लेकिन the truth of the matter is a mere big dream means nothing. A mere huge dream means nothing, है ना. मैंने हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ फैक्टर्स लिख के रखे कि सक्सेस, बिकॉज आई वर्क विद hundreds and thousands of people in my career. As an organization, we have touched the lives of more than 20 lakh people in the past 18 years. इन 20 लाख लोगों में से करीब 8 से 10 लाख लोगों को मैंने अकेले ही ट्रेन किया है, इंडिया में और इंडिया के बाहर. हजारों कंपनियों के साथ मैंने काम किया है. तो इसका मतलब ये है कि आई हैव worked with many people who are very successful. But at the same time, I have also worked with many people who are not so successful, who are just kind of average people. And I have also worked with many people who are abject failures in life. तो जब मैं देखता हूं, जब मैं पूछता हूं अपने आप से कि क्या कारण है
कि कुछ लोग बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली नए 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 अचीवमेंट्स कर रहे हैं, फिर चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, फिर वो सिंगर हो, कि एक्टर हो, कि कोई स्पोर्ट्समैन हो, कि कोई बिजनेसमैन हो, कि कोई 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 गवर्नमेंट ऑफिशियल हो। जब मैं इनको देखता हूँ, इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचने की उनकी इच्छा थी। सो आई बीन वंडरिंग, और मैं इसके संबंध में लिखता रहा हूँ, किताबें लिखता रहा हूँ, और लेक्चर्स डिलीवर करता रहा हूँ। तो मुझे कुछ चीजें नजर आती। पहली तो मैंने देखी स्लाइड पर लिख रखी है, फर्स्ट थिंग इज रिस्क टेकिंग। और जहां पर भी आप बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने कॉलेज में बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, वहीं से जोर से पढ़िए। क्या है पहला पॉइंट? रिस्क टेकिंग। जोर से पढ़िए, रिस्क टेकिंग। ये मत समझिए कि मुझे सुनाई नहीं देता है, मैं सुन पा रहा हूं। आप जोर से पढ़िए। द फर्स्ट पॉइंट इज रिस्क टेकिंग। सक्सेस के लिए पहला फैक्टर है रिस्क लेने की तैयारी। तू कहता है सब कुछ बैठे बैठे मिल जाना चाहिए, नहीं चलेगा ना वहां। तू अपना शहर छोड़ने को तैयार नहीं, तू अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं, तू अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे तो मम्मी के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। तो अब तेरे शौक इतने बड़े बड़े हैं, तो तेरे और मेरे जीवन में राजा, ये सक्सेस जो है ना, ये कल्पना बनकर रह जाएगी। सो सक्सेस इन्वॉल्व्स नंबर वन रिस्क टेकिंग। सो यू नीड टू टेक रिस्क इन टर्म इन योर करियर, टेक रिस्क। अभी इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, एंड आई एम श्योर व्हेन दे ट्राइड द फर्स्ट टाइम डिलीवरिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ अ पब्लिक, घबरा गए होंगे, इजंट इट? पर आपने वो रिस्क उठाई, आपने रिस्क उठाई, बिकॉज 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 करेज इज ऑल अबाउट दैट। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आदमी को फियर महसूस नहीं होता। करेज का मतलब है कि फियर महसूस होते हुए भी वो एक्शन लेता है। सो नंबर वन इज रिस्क टेकिंग। नंबर टू, उसके लिए एंटरिंग द अनप्रेडिक्टेबल। डॉक्टर साहब, आज भी अगर आप अपने अपने इंस्टीट्यूट में एक एक ऐड लगा दीजिए, एक जॉब ओपनिंग की, कि भैया ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड, या कि एचआर एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड, या कि है ना, इस प्रकार की कोई डेस्क जॉब आप लगा दीजिए, लाइन लग जाएगी बच्चों की। और आप अपने इंस्टीट्यूट के कैंपस में वो जो क्या होता है, वो ग्लास बोर्ड होता है, वहां पर आप लगा दीजिए कि सेल्स पीपल रिक्वायर्ड। आते तक नहीं है बच्चे, या आएंगे तो बहुत कम आएंगे, और आएंगे तो अंट शंट सवाल पूछेंगे, कितना मिलेगा, छुट्टी कितनी होगी, टारगेट तो नहीं होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। Because the field of sales is extremely unpredictable, and not just sales, any field which has the potential to generate money is unpredictable. अगर आपको प्रेडिक्टेबल सैलरीज चाहिए, अगर आपको प्रेडिक्टेबल और गारंटीड प्रमोशंस चाहिए, तो फिर ये सक्सेस आपके लिए नहीं है, फिर सेल्स का फील्ड आपके लिए नहीं है। सेल्स इज ऑल अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। यू कैन नॉट गारंटी कि भाई रिजल्ट निकलेंगे कि ही नहीं। और चूंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी लगी रहती है, इसलिए लोग घबराते हैं। लोग स्टेज पर जाने से क्यों घबराते हैं डॉक्टर साहब? बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल है कि आज मैं स्टेज पर जाऊंगा तो लोगों का दिल जीत पाऊंगा कि नहीं, लोग मेरा स्वागत करेंगे कि नहीं, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे कि नहीं। इट इज अनप्रेडिक्टेबल, एंड इवन द बेस्ट परफॉर्मर्स, देयर आर टाइम्स, है ना, कि उनके भी शोज कई बार फ्लॉप होते हैं, इवन द बेस्ट परफॉर्मर्स। तो लोगों को डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन मैं जो प्रेडिक्टेबल, मैं जो रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूं, प्री रिक्विजाइट्स की बात कर रहा हूं सक्सेस की, वो ये 4-5 प्री रिक्विजाइट्स है। पहला, रिस्क टेकिंग। दूसरा, जोर से पढ़िए, जहां पर बैठे वहीं से पढ़िए, एंटरिंग द अनप्रेडिक्टेबल। एंटरिंग द अनप्रेडिक्टेबल। आज भी टीसीएस अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जॉब ओपनिंग खोल देगा ना साहब, तो लाइन लग जाती है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल है, इतनी बटनें दबानी है और इतना ही सैलरी मिलना है। सेल्स में ऐसा नहीं। बट द फैक्ट इज, सेल्स वो अकेला प्रोफेशन है, या बहुत कम प्रोफेशंस में से है कि जहां पर आप अपनी सैलरी खुद तय कर सकते हैं। सेल्स का एक अकेला फील्ड वो है जहां पर कमीशन और इंसेंटिव्स होते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे अकाउंटेंट है और इस महीने आपने बहुत अच्छा अकाउंटिंग कर लिया, अगर आप बहुत अच्छे एचआर एग्जीक्यूटिव है और इस महीने आपने बहुत अच्छा एचआर का काम कर लिया, अगर आप बहुत अच्छे एडमिन के एग्जीक्यूटिव हैं और इस महीने आपने एडमिन में बहुत अच्छा काम कर लिया, तो क्या होगा? आपका बॉस आपको शाबाशी देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेल्स में हैं और इस महीने आपने धुआंधार सेल्स कर लिया, तो आप ऐसा इंसेंटिव कमाएंगे कि हो सकता है आप अपनी छोटी बहन को अगले महीने स्कूटी गिफ्ट कर पाए, या अपनी मम्मी ने जो 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 ज्वेलरी रखी थी आपके एजुकेशन लोन के लिए, वो आप अगले ही महीने में छुड़वा पाएंगे। That's the power of being in sales, or for that matter, anything unpredictable. That's number two. Number three, and therefore you need to expose yourself. You need to expose yourself. ये घबरा घबरा कर नहीं जी सकते आप और मैं। अगर आपके जीवन में सक्सेस घटना है, तो आपको तैयारी रखनी होगी। आपको अपमान की, आपको आपको मूर्ख सिद्ध होने की
तैयारी रखनी होगी, आपको फेलियर की तैयारी रखनी होगी, एंड यू नीड टू एक्सपोज योरसेल्फ। और जब आप एक्सपोज करेंगे अपने आप को, आप स्टेज पर जाएंगे इस कोर्स के माध्यम से या कहीं पर और, आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए या किसी सेल्स कॉल के लिए या किसी बिजनेस डेवलपमेंट कॉल के लिए, जब आप किसी ऑडियंस के सामने जाएंगे तो हो सकता है कि वो ऑडियंस आपकी कल्पनाओं को स्वीकार करें, हो सकता है वो ऑडियंस अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो ऑडियंस आपकी बात को नकारे, उसको आपकी बात पसंद नहीं आए, उसको आप पसंद नहीं आए, आपके विचार पसंद नहीं आए, आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, वॉट एवर बी द केस। तो फिर आपको विचार करना होगा कि आज मैं कहां कम पड़ गया, and then begins the journey of learning unknown concept, which is a daily journey, which is a daily journey. Now the challenge is, देखिए आप स्टूडेंट हैं, आज आप 140 150 स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ा है. Now I see more than 180 people are there on the screen. So so I thank all of these people for joining the session today, but I must tell them utmost sincerely कि ये जो लर्निंग है ना, हम में से बहुत लोगों की समस्या ये है कि डिग्री ले लेते हम, एक बार कॉलेज खत्म हो जाता है, और हम में से बहुतों ना जब भी एक बार डिग्री मिल गई तो लोग घोषणा कर देते हैं कि खबरदार मेरे पास अभी कोई किताब लेके आया तो उसी किताब से ठोक देगा साला में. I'm not going to read, I'm not going to study again, that's it. But the fact is, anybody who's earning success on a daily basis is learning, reading, studying, making himself or herself better on a daily basis. And that's another important aspect of becoming successful. And the last point I have written here is surrendering. Surrendering to what? Surrendering to the purpose of your life, surrendering to your industry, surrendering to your sector, surrendering to the values that your organization holds dearly. Surrender करना, शरण जाना होगा. डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जब आपने ये सवाल पूछा कि क्यों भाई, क्यों लोग सेल्स में जाना नहीं चाहते या जाने से घबराते हैं या जाने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उसका कारण डॉक्टर साहब ये है, सिंगिंग में, एक्टिंग में, स्पोर्ट्स में, सेल्स में भी ऐसा. ये सारे क्षेत्र अनप्रेडिक्टेबल है. पॉलिटिक्स का क्षेत्र अनप्रेडिक्टेबल है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र अनप्रेडिक्टेबल है, सेल्स का भी क्षेत्र अनप्रेडिक्टेबल है. लेकिन आप सक्सेस पा सकते हैं. मैंने ये तो 4-5 चीजें लिखी हैं, इसके अलावा और 50 चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए. तो मैं इस वाले चर्चा को समराइज करूंगा. मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जब पूछा कि क्यों नहीं जाते लोग सेल्स में या किसी कठिन प्रोफेशन में, जो प्रोफेशन उनको 10 गुना पैसा दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब बात करना आसान है और बातें करना हम में से बहुतों को बहुत अच्छे से आता है. और अब तो YouTube पर इतने मोटिवेटर्स फैले हैं मोहल्ले मोहल्ले में कि उन्होंने हमको अच्छा बात करना सिखा दिया है. हाँ, हम में से निठल्ले और आलसी लोग भी अच्छा बात करने लगे हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं साले, ठेंगा काम नहीं करते हैं, बातें अच्छी कर लेते हैं. And I know hundreds and thousands of people, डॉक्टर साहब, जिनकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है. They're very talented, they're very competent, लेकिन क्या करे साहब, उठते ही नहीं. क्या करे साहब, निकलते ही नहीं. क्या करे साहब, मेहनत ही नहीं करते. So the fact is, hard work will always beat talent. And that is the reason, Dr. Saab, in spite of the fact that so many talented students, और आपने भी अपने करियर में देखा होगा, आप तो टीचर हैं और यहाँ पर आई एम श्योर और भी टीचर्स जुड़े होंगे. मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं उनका नाम नहीं जानता, उस मंच पर होंगे, मैं उनको मेरी ओर से यहीं से अभिवादन करता हूँ. बट द फैक्ट इज कि आप सभी ने, मैंने भी अपने जीवन में कितने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत टैलेंटेड है, और लगता है कि यार कहीं जाएगा, कुछ करेगा, बट 5 साल बाद 10 साल बाद देखते हैं वो वही का वही है, कुछ नहीं घटा उसके जीवन में. बिकॉज द फैक्ट इज दैट गाय वाज अ टॉकर, बातें करने का एक्सपर्ट था, ये करता कुछ नहीं था. तो आपके इस सवाल के संबंध में मेरी ये राय है डॉक्टर साहब. एक और सवाल, और मैं आशा करता हूं कि आई होप we are in the right direction. I hope our students are getting some meaningful messages out of it. और मैं चाहूंगा कि वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और अपने ख्यालों को लिखें और अपने सवालों को लिखें, अपनी राय को लिखें. अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए कि यस यू अग्री, और या अगर आप मेरी बात से असहमत हैं, आपका कोई दूसरा ख्याल है, प्लीज राइट इट डाउन. योर थॉट्स आर वेलकम, आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स, एंड देन मे बी वी कैन हैव अ चैट अराउंड देम. आपने आगे एक और बात कही है डॉक्टर साहब अपने इस डॉक्यूमेंट में. आप कहते हैं
Sales in a manner is a different form of persuasion. In sales, you persuade others through your words and behavior to take some action, subscribe to a service, buy a product, etc. But in day-to-day life, we can persuade our parents and our friends to do things for us. Why does this persuasion seem difficult in a business scenario? I completely agree. Yes. Notice the interesting thing is, interestingly, सेल्स तो हम सब बचपन से करते आए हैं, बचपन से कर रहे हैं। आपका ये सवाल पढ़ करके मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने कहा बिल्कुल तबीयत वाली बात कर दिया आपने। हमने सबने बचपन से सेल्स किया है सर। हमने मम्मी को आइडिया बेचा था कि आज मैंने स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए नए नए पैतरे हमने पैदा किए थे कि आज तो पेट ही दुख रहा है, आज तो स्कूल में कुछ होने ही नहीं वाला है, एंड थिंग्स लाइक दैट। हमने आइडिया सेल किए। हमने बचपन में पापा को आइडिया सेल की थी, हमने बचपन में टीचर को आइडिया सेल की, हमने बचपन में अपने कलीग्स को, दोस्तों को आइडिया सेल की कि आप आज क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए और फुटबॉल क्यों नहीं खेलना चाहिए, या मैंने ही इस टीम का कैप्टन क्यों होना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट, या मैंने ही बैटिंग क्यों करनी चाहिए, या मुझे फिर से एक बार बैटिंग का मौका क्यों मिलना चाहिए। ये तो बचपन से हम सेल करते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो हम बिल्कुल सेल कर रहे हैं। तो गुण तो हमारे पास में है, गुण तो हमारे पास में है, बट like all sciences, sales is also a science, Dr. Sam. Now what happens is, during our childhood or probably our college days, we have tried persuasion with people that we know, and there is some amount of comfort there. So even if those people who know us, they like us and they love us, so even if they want to reject an idea, they will reject in a manner that is not going to hurt us. So your mothers and fathers have developed techniques and tactics to reject your ideas without hurting you. But in the field of sales, Dr. Saab, you and I meet people who are unknown to us, right? And they don't know you, they don't care. So I teach hundreds and thousands of sales people, and when they face a rejection, तो मैं, और क्या होता है कि जब लोग रिजेक्शन फेस करते हैं ना डॉक्टर साहब, तो फिर से फोन नहीं उठाते हैं, या फिर से दूसरे सेल्स कॉल को नहीं जाते हैं, या फिर किसी नए व्यक्ति से जाकर के मिलते नहीं है, ऑल दैट। फॉर एग्जांपल, आई हैव एन एक्टर फ्रेंड जो कि बहुत अच्छा एक्टर है, और उसकी साउथ में 2-3 फिल्में हिट हुई है, या यहाँ बॉलीवुड में उसकी 2-3 फिल्में हैं ना, और एक में तो उसने लीडिंग रोल किया था, और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका है, ऑल दैट नो। लेकिन अब 2-3 साल हो गए डॉक्टर साहब, काम नहीं है उसके हाथ में, काम नहीं। क्योंकि मैं जब भी पूछता हूं कि महाराज काम क्यों नहीं है, सर नहीं हाथ में प्रोजेक्ट्स नहीं है। प्रोजेक्ट्स नहीं है तो प्रोजेक्ट ढूंढने पड़ेंगे ना, प्रोजेक्ट नहीं तो प्रोजेक्ट ढूंढने पड़ेंगे। When was the last time you called up a producer? When was the last time you called up a director के साथ मैं आ रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, है ना, मैंने अभी भी ये नया कोर्स किया है, तो कुछ नई एक्टिंग स्किल्स मैंने डेवलप की है, या मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहता हूँ। वो भाई 3 साल पहले मेरा एक फिल्म रिलीज हुआ था, आपने देखी कि नहीं देखी, तो मैं साथ में आकर आपको दिखाता हूँ। कुछ 2-4 पीसेस हैं वो तो आपने देखने ही चाहिए, आपकी अगली फिल्म के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि वैसा आप एक्टर ढूंढ रहे होंगे, और कोई हर्जा नहीं अगर नहीं ढूंढ रहे हो, मैं आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ, अगले प्रोजेक्ट के लिए आप मेरा विचार कर लेना, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट दिस गाय इज नॉट पिकिंग अप द फोन. He's not going and meeting up directors and producers. And the reason is, he picked up the phone, Dr. Saab. He actually met up with 2 or 3 people, but he faced rejection 3 or 4 times. 3 or 4 times he faced rejection. And since then, he's just not going. He's just not meeting people. हम में से कई लोग ये कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन 100 से अधिक प्रोड्यूसर्स के पास गए थे, और कैसे उनको 100 प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया था कि अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी खराब है, ऐसी आवाज का तो कोई हीरो ही नहीं होता है। हमने कहानियां ये सब सुनी है, कहानियां हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उन कहानियों पर एक्शन लेना है ना। तो इट्स नॉट जस्ट सेल्स डॉक्टर साहब, सेल्स तो है ही। आपका सवाल चूंकि सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बात करूंगा कि लोग ना रिजेक्शन से घबराते हैं डॉक्टर साहब, बट दे डोंट रियलाइज कि सेल्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, इट इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोहली इज मेकिंग crores of rupees in cricket, and Dhoni has made it, and Sachin Tendulkar has made it. But have our students forgotten that Kohli went through a tremendous bad patch just 1 year ago? अभी 1 साल पहले तक, करीब 18 से 19 महीने तक
ये आदमी 1 रन 2 रन 3 रन 0 रन पे आउट होकर वापस आ रहा था और लोग कह रहे थे कि इसने रिटायरमेंट लेना चाहिए. He was constantly going out on the field and getting rejected by the bowler, and he was coming back. He was failing nearly every day and coming back. तो क्या मन नहीं करता होगा उसका भी कहने का कि नहीं खेलना मुझे, बस हो गया, आप नहीं खेलूंगा मैं. लेकिन याद रखिए, जो ऐसा करता है वो जिंदगी भर घर पर बैठा रहेगा, फिर उसके जीवन में कुछ नहीं घटना है. So the trick of any sport, sales is also a sport, building career is a sport, cricket is a sport, football is a sport. The rule of every sport, the rule of success is to stay on the stadium. स्टेडियम पे खड़ा रहना है, हिलना नहीं है. यहाँ एक किस्सा मुझे याद आता है, डॉक्टर साहब आपकी परमिशन से क्विकली सुनाता हूँ. आई लव नरेटिंग स्टोरीज एंड आई बिलीव एडल्ट्स आल्सो लाइक हियरिंग स्टोरी. बीच में कुछ समय पहले की बात है, एक इंटरव्यू देख रहा था मैं. इस इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर थे और वीरेंद्र सहवाग थे. इन दोनों का इंटरव्यू चल रहा था. इंटरव्यू लेने वाले इनके पुराने मित्र थे, इसलिए थोड़ा यारी दोस्ती के माहौल में इंटरव्यू हो रहा था. एंड द इंटरव्यूअर, और उस पूरे इंटरव्यू के दौरान सचिन जो है वो वीरू को पाजी बुलाते थे, एंड वीरू जो है वो सचिन को भगवान बुलाते थे. इंटरव्यू में उसके सामने ही उसको भगवान बुलाता है. एंड देन द इंटरव्यूअर आस्क्ड अ क्वेश्चन कि अरे पाजी, वो आपके जीवन में वो एक पैच भी आया था जहां पर करीब नियरली फॉर एन एंटायर ईयर you were unable to score any runs and you had a very bad patch. How did you beat that patch? आप उससे निकले कैसे? तो now Veeru is answering that question. He said, अरे हाँ, वो बहुत डेंजरस पैच था मेरे लाइफ का और मैंने सब कुछ करके देख लिया उस जमाने में. I was practicing like crazy. I was taking advice from coach. I was doing a lot of things, but for God knows what reason, I was unable to crack it. I was getting bowled at 0, and I was getting bowled in bad balls. खराब balls पे भी out हो रहा था मैं, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. तो ऐसे ही एक मैच में फिर से जब मैं उतरा तो मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी, खराब थी. तो हर ओवर के बाद में बीच में सचिन और वीरेंद्र सहवाग आकर बीच में बात करते थे. जिन लोगों ने इनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है उनको याद होगा कि एवरी ओवर के बीच में ये लोग बीच में आकर बात करते थे. सो वीरू सेज टू सचिन, तो वीरू अभी ये कहानी बता रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा था. तो मैंने भगवान से आके कहा कि यार भगवान, यार कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लगता है आज भी मैं ऐसे ही जाएगा 0 और 1 पे 2 पे, मेरे को बॉल ही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं. तो भगवान मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, चिंता नहीं कर, एक बात बता, तेरे तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मदर फादर कहाँ है आज. देन ही सेड कि दिल्ली में है. नहीं, दिल्ली में मतलब किधर? तो ही सेड कि घर पर है, घर पर होंगे अभी. अच्छा, क्या कर रहे होंगे? ऑब्वियसली मैच देख रहे होंगे ना, बिकॉज मैं स्क्रीन पर हूँ, मैं स्क्रीन पर हूँ तो मैच देख रहे होंगे. अच्छा. तो देन भगवान मेरे को बोला, तो तू एक काम कर, तेरे माता पिता सारा काम धंधा छोड़ करके मैच देख रहे हैं, तो तू सिर्फ एक काम कर, तू ये रन वगैरह बनाने का चक्कर छोड़ दे, ठीक है, वो मैं देख लूंगा. तू सिर्फ इतनी व्यवस्था कर कि तेरे माता पिता अगले 1 घंटा तेरे को स्क्रीन पे देख पाए, बस इतना कर, बाकी अपन देख. एंड वीरू से मैंने उतना ही किया. भगवान बोला इतना करने का, मैंने उतना किया. मैंने बोला तेल लेने गया ये रन और चौका छक्का मारने का, आई एम नॉट गोइंग टू हिट एनी बाउंड्रीज, आई एम ओनली गोइंग टू स्टे ऑन दिस क्रीज फॉर द नेक्स्ट 1 आवर. एंड बोलता उस दिन मैं सेंचुरी मार के वहां से निकला. ये कहानी मुझे इतना ही सिखाती है कि आपके और मेरे जीवन में बैड पैचेस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, पर हर स्पोर्ट का नियम होता है, जब तक आखिरी बॉल नहीं खेला जाता, जब तक आखिरी विकेट नहीं जाती, तब तक तू मैदान पे खड़ा रहेगा, तू भागेगा नहीं. यू कैन नॉट गो टू द अंपायर एंड से अरे अंपायर ये बहुत कितना हमारा विकेट ले लिया, देखना कितनी इज्जत चला गया हमारा, तो अभी तुम जीत भी नहीं सकते नो, 20 ईयर्स क्या कहते हैं 20 ओवर्स बाकी है और हमारे तो 8 विकेट चले गए, 2 ही विकेट बाकी, हम कैसा जीतेगा, जाने देना, कॉल ऑफ द मैच. कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट इन क्रिकेट? कैन यू डू दैट इन फुटबॉल? देयर आर रूल्स टू अ स्पोर्ट. सक्सेस इज स्पोर्ट, life is sport, and there's an important rule there, and the rule is you cannot quit this sport. Rejections will happen. So that was your question, Dr. Saab. I thought
I'll share this thought of mine. Nearly 11:50 हो रहा है. Another 10 minutes I'll take, and then we will open the platform for any kind of questions and answers. आप आपने आगे ये सोशल मीडिया वगैरह की बात की है, बट मैं आज के जमाने के बच्चों को क्या सिखाऊं, दे आर ऑल सो गुड एट इट. बट मैं उसके आगे का क्वेश्चन मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. आई क्विकली टेक इट. आपने एक सवाल पूछा है डॉक्टर साहब, public speaking can be daunting for many individuals, especially when addressing a large audience. Yes, it is daunting. घबराते हैं, और स्वाभाविक है, और घबराना चाहिए. अगर आपको घबराहट होती है, इसका मतलब यह है कि आप अब भी इंसान हैं. अच्छी बात है. आगे आप लिखते हैं डॉक्टर साहब कि what strategies or techniques do you recommend for overcoming stage fright and delivering impactful speeches with confidence? इस कॉन्फिडेंस पर आता हूं डॉक्टर साहब. मैंने हमेशा देखा है कि कॉन्फिडेंस इज अ वेरी वेरी मिसयूज्ड टर्म. जनरली लोग कॉन्फिडेंस को बोल्डनेस के स्वरूप में लेते हैं. कोई धीट होता है ना, धीट आदमी, वो कहते हैं कॉन्फिडेंट है. नहीं, धीट आदमी कॉन्फिडेंट नहीं. धीट होना मतलब कॉन्फिडेंट होना नहीं. कॉन्फिडेंस का इन चीजों से संबंध नहीं. कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया जाता, और जो लोग कॉन्फिडेंस डेवलप करने के पीछे पड़ते हैं, मुझे लगता है वो रास्ता भटक जाते हैं. कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करना है. कॉन्फिडेंस तो आउटकम है. अगर जीवन में सही चीजें की है तो कॉन्फिडेंस आएगा. आज सुबह सही समय पर उठना था. आपने अपने आप से कल वादा किया था, आप सुबह जल्दी उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ने को जाने वाले थे. अगर आपने वो किया है तो कॉन्फिडेंस आएगा. आपने कल अपने आप से वादा किया था कि मैं दौड़ने जाऊंगा, वापस आऊंगा, आज 100 किताब पढ़ूंगा, आज बर्ट्रैंड रसेल पढ़ूंगा, आज लियो टॉल्स्टॉय पढ़ूंगा, आज अब्राहम लिंकन पढ़ूंगा. हाँ, आपने वादा किया था ना अपने आप से. अगर आपने पढ़ा है 4 पन्ना, अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. जो आपने अपने आप से वादा किया था, आपने कहा था ना कि मैं आज एक्सरसाइज करूंगा, आपने कहा था ना कि मैं प्रोफेसर साहब ने जो होमवर्क दिया है मैं उसको करूंगा. अगर आपने ये किया है ना महाराज, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगर आपने ये सब नहीं किया है तो स्टेज पर आप जाकर के जो दिखाएंगे उसे बोल्डनेस कहते हैं. झूठा है, भरे भी है आपका ये इसे आत्मविश्वास नहीं कहते. आत्मविश्वास ट्रैक रिकॉर्ड से आता है. Confidence is an outcome of doing the right things on a daily basis. Confidence is an outcome of studying, making yourselves better on a daily basis, being in the company of achievers on a daily basis, learning from the best on a daily basis. Confidence is an outcome. Confidence नहीं सीखा जाता, confidence पैदा होता है. तो काम कहीं और होना चाहिए. काम होना चाहिए इनपुट पे, रॉ मटेरियल पे. कॉन्फिडेंस तो आउटपुट है. तो जो लोग घबराते हैं स्टेज पर जाने से, उसमें कोई हर्ज नहीं. अगर उनको स्टेज फ्राइट होता है, मैं कहूंगा अच्छी बात, अच्छी बात. आपको अगर स्टेज से डर लगता है तो आप स्टेज को लाइटली नहीं लेंगे, आप स्टेज का अपमान नहीं करेंगे, आप अपनी ऑडियंस का अपमान नहीं करेंगे. बिकॉज मैं ऐसे मूर्खों को भी जानता हूं जो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर किसी भी मंच पर खड़े हो जाते हैं. ना ऑडियंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, ना अभ्यास करते हैं, ना विषय के बारे में अभ्यास करते हैं, और अनशंट बातें करके निकल जाते हैं. तो उन लोगों को तो हम ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं. ऐसे लोगों से तो अंडर कॉन्फिडेंट आदमी अच्छा, जो ज्यादा पढ़ाई करेगा, जो ज्यादा तैयारी करेगा, बिकॉज वो थोड़ा घबराया हुआ है. जो थोड़ी बहुत घबराहट बुरी नहीं, अच्छी बात, कोई वो उसमें चिंता का विषय नहीं, अच्छी बात. लेकिन कुछ टिप्स और टूल्स दूंगा, 2-3 क्विकली दूंगा, और फिर 11 बज जाएगा. देन वी विल ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर क्विक क्वेश्चंस. सो मुझे लगता है 2-3 बात ये है कि भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू ऑल्सो, और ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूं जो आपके प्रोफेसर ने और आपके फैकल्टी ने आपके कोर्स में नहीं बताया है. आई ओनली रीइंफोर्स दैट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. भाई, यू नीड टू स्टडी योर ऑडियंस, कि मेरा ऑडियंस कैसा होगा, ये सोचते कैसे होंगे, विचार कैसे करते होंगे. आइडियली अव्वल तो ये है कि आप ऑडियंस में से कुछ सैंपल साइज से 2-3 लोगों से बात करें. जब भी मेरा कोई बड़ा सेशन, बड़ा सेमिनार आता है, मैं 2-4 लोगों से फोन पर पहले से ही बात कर लेता हूँ. 500-1000 लोग आने वाले हैं, और बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं, तो मैं 2-4 से पहले ही बात कर लेता हूँ. मैं नंबर्स मंगवा लेता हूँ कि मैं कुछ सैंपल से बात करने जा रहा हूँ.
तो इससे क्या होता है कि एक फील मिलता है कि ये लोग सोचते कैसे हैं, विचार कैसे करते हैं। जब मैंने फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब आपसे बात की, आपसे ईमेल्स हुए हैं, ये जो आपने डॉक्यूमेंट भेजा, इससे मुझे समझ में आया कि भाई आपका ऑडियंस क्या सुनना चाहता होगा। दैट्स पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। Then the second aspect is now you need to prepare about the topic and subject around. अभी होता क्या है साहब कि जिस विषय का, जैसे आज आपको एक विषय मिला है और आपको 3 दिन बाद प्रिपरेशन करना है, मुझे लगता है आप ऑडियंस पर अन्याय करने वाले हैं। मुझे लगता है आपने ऐसे विषय नहीं स्वीकार करने चाहिए जिस पर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन स्टडी करने वाले। ऐसा नहीं होता, आप कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन पाए, है ना। देखिए महाराज, महात्मा गांधी अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आदमी जब बात करता था तो लाखों उसकी बात को सुनते थे। मैं अच्छा वक्ता हूं, आप अगर मुझसे कहे कि बूढ़े साहब सत्य और अहिंसा पर बात कीजिए, तो मैं कर सकता हूं, मैं अच्छी बात करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरी बात से कोई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में सत्य और अहिंसा नहीं है, या उतनी नहीं है जितनी महात्मा की थी। वक्ता यानी केवल शब्दों से you are going to express who you are, and therefore you and I also need to first become. The focus has to on being, not just on doing or saying. So if you are going to talk on success, then become successful first. If you are going to talk on confidence, then become confident first. If you are going to talk on people relations, then develop great relations first. If you are going to talk on leadership, then exhibit some leadership first, and so on and so forth. If you are going to talk on production, become an expert on production first. If you are going to talk on negotiation, become an expert on negotiation first. If you are going to talk on the Constitution of India, then become an expert on the Constitution first, and so on and so forth. यानी कि मेरा सुझाव हमारे सारे मित्रों को और सहेलियों को है कि भाई पहले हम वो जिए, शब्द तो क्या है निकल जाएंगे, है ना। और वो सिखाने के लिए हमारे टीचर्स तो हमारे पास में है ही, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो हमारे टीचर्स ने आपको कितना भी अच्छा सिखा दिया, उन्होंने आपको टेक्निक सिखा दिए, उन्होंने आपको अच्छा कपड़ा पहनना सिखा दिया, उन्होंने आपको चकाचक इंग्लिश में बात करना सिखा दिया, लेकिन आपकी बात किसी के दिल में उतरेगी नहीं महाराज। एंड देयरफॉर the most important part in becoming a great orator or somebody who can impact people's life is to become your message, is to live your message first. If you and I can live our message, then there is a probability our message might impact a few people. और भी बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे डॉक्टर साहब, बट समय मेरे ख्याल से इतना ही है, and I'm sure we will get the opportunity to talk again and speak again. मैंने अपने कुछ विचार रखे हैं, कुछ ख्याल रखे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं, हमारे हमारे जो मित्र हैं, I now stop the share. How do you stop the share? Yeah. Stop it. Yes. Okay. And So we can see some questions also. हाँ in chat, है ना? लिखते हैं is confidence correlated with speaking in good English? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा केवल एक माध्यम है, केवल एक जरिया है अपने विचार पहुंचाने का। तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, आप छत्तीसगढ़ी अच्छा बोलते हैं उसमें बोलिए, आप नेपाली अच्छा बोलते हैं उसमें बोलिए, आप हिंदी अच्छा बोलते हैं, आप मैथिली अच्छा बोलते हैं उसमें बोलिए, आप तेलुगु अच्छा बोलते हैं, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इंग्लिश एक मददगार साबित होती है। इंग्लिश इज अ फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज, बिकॉज क्या है कि आज दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है, इवन अपने देश में भी है, जो इंग्लिश बोलता है और समझता है। तो इसकी चिंता नहीं करें कि आपके पास इंग्लिश नहीं है इसलिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप चिंता नहीं करना, आप उस भाषा में बात करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट है। हाँ, लेकिन साथ साथ दूसरी भाषाओं पर काम करते रहना, जैसे इंग्लिश में भी। और आज इंग्लिश में कितनी अच्छी अच्छी किताबें और सरल किताबें जिससे आप अपनी भाषा का ज्ञान, अपनी वोकैबुलरी, अपना डिक्शन इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ आगे और आगे कुछ और ऊपर सवाल उठे हैं। ये एक सवाल है, एक ये तो हो गया, ये अपने लिया है, हाउ डू यू एंगेज एंड मेंटेन ऑडियंस अटेंशन ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन? यस, ये जेके ने ये सवाल पूछा है। देखिए, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, टूल्स होते हैं। जब बच्चों को आप एड्रेस करते हैं तो उसमें तो बहुत सारी जोर जबरदस्ती चल भी जाती है।
बच्चे तो बेचारे मान भी लेते हैं, लेकिन जब आप एडल्ट्स के साथ डील करते हैं ना, एडल्ट का होता है महाराज ईगो है, और उसका ईगो होता है ट्रक साइज का। एडल्ट की खुद की साइज इतनी, उसकी ईगो का साइज ट्रक साइज का। तो आपको एडल्ट की ईगो को हैंडल करना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो अपना अनुभव लेकर आता है, आपको उसके अनुभव का सम्मान करना होगा, आपको उसका सम्मान करना होगा, और आपको ये कोशिश करनी होगी। मुझे मुझे इसीलिए ये इस प्रकार के वन वे कम्युनिकेशन से बड़ा डर लगता है कि पता नहीं है तो 180 पीपल, लेकिन न जाने कितने लोग स्क्रीन शुरू करके चले गए घूमने। तो इसलिए मेरी चाहत हमेशा रही है कि हम सामने बात करें। एडल्ट को एंगेज करने के लिए 2-3 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि एडल्ट केवल आपकी थियरी से प्रभावित नहीं होगा। एडल्ट को चाहिए कुछ किस्से कहानियां जो उसके जीवन से रिलेट कर पाए। दूसरा, आपको एडल्ट को ना बीच बीच में एंगेज करना होगा एक्टिविटीज के माध्यम से। कोई भी एडल्ट 20-25 मिनट तक आपके साथ एंगेज रह सकता है, कोई सीरियस चर्चा चल रही है तो। उसके बाद देखिए, इसमें 2 बातें। पहली तो एडल्ट का दिल का दरवाजा खोलना पड़ेगा कि वो आपकी बात को स्वीकार करे, क्योंकि उसका ईगो अलाउ नहीं करता। वो अपने परम पूज्य जब बाप की बात नहीं सुनता तो आपकी कहां से सुनेगा, है ना? तो एक तो उसके दिल का दरवाजा खोलना। फर्ज कीजिए आपने दिल का दरवाजा खोल लिया, नाउ द एडल्ट सेज ओके आई एम विलिंग टू लिसन टू यू, बट एक 20-25 मिनट के बाद उसका शरीर मना कर देता है ना। सो बॉडी के भी लिमिटेशंस है, एंड देयरफॉर यू नीड टू डिजाइन योर टॉक और योर एड्रेस इन अ मैनर where there is some kind of an activity, some kind of break after 20-25 minutes, some kind of group session or something like that, no? तो ये मेरा सुझाव है। इसके अलावा भी बहुत सुझाव है, मैं हर एक सवाल का शॉर्ट में जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। आई विल नॉट क्लेम that I am answering your questions to the fullest. No, that is not possible. I am touching 1 or 2 aspects of your questions, and I hope you will understand where I come from. एक सवाल और है, नीचे आया है ये, what are some key elements of effective communication that you emphasize in your training? There are so many, but one key element I emphasize, SS इन्होंने ये सवाल पूछा है, I emphasize being real. आप जैसे हैं वैसे रहिए, बेकार में ही कुछ ऐसा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं जो आप है नहीं। उदाहरण के तौर पे मेरी अपनी भाषा है, एंड मेरी भाषा में आई यूज अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं कि स्लैंग। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बात करता हूं। तो दुनिया में कुछ लोग होंगे जो मेरी भाषा से सरोकार रखते होंगे, जो मेरे शब्दों के पार का आदमी देख पाए, राइट? मैं उन लोगों की तलाश में हूं। मैं किसी और के लिए अपनी भाषा नहीं बदलूंगा, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। और मुझे लगता है ये जो ओरिजिनलिटी है आपकी, इसको रिटेन करेंगे आप तो आपका आपका मैसेज सही लोगों तक और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। किसी ने ये आगे पूछा, हाउ डू यू टीच पार्टिसिपेंट्स टू स्ट्रक्चर देयर स्पीचेस? मुझे लगता है कि आपके टीचर्स, आपके जो कोचेस हैं जो इस कोर्स को चला रहे हैं, वो इन विषयों पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे होंगे। किसी ने हाँ एक लिखा है कि I have a dream of becoming an investment banker and people think that it's a core finance role, but it is not. Yes, it is not. It is mainly related to persuading clients. So how can I help? How can I develop this skill? तो देखो आप ना, जैसे अभी स्क्रीन पर डॉक्टर शर्मा है, ये लोग हैं जिनके आपने चरण पकड़ के बैठ जाने चाहिए, और ऐसे और फैकल्टी होंगे आपके इंस्टीट्यूट में who will help you develop this skill. लेकिन मैंने क्या कहा था, सरेंडर करना होगा साहब। एंड देन देयर आर अमेजिंग ऑथर्स, कहीं डेल कार्नेगी है, कहीं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ टिप्स और टूल्स को लिख रखा है। तो मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अबाउट परसुएडिंग पीपल, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा एक कदम आगे ले जाता हूं। यू नो, आप अपने करियर के शुरुआत के 2-4 साल के बाद में जिस रोल पर आएंगे ना, जैसे ही आप एक मैनेजरियल रोल पर आते हैं और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है, एवरी रोल इज अबाउट परसुएडिंग पीपल। सक्सेस इज ऑल। जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हैं, फिर आप मशीनरीज नहीं हैंडल करते हैं, फिर आप उन लोगों को हैंडल करते हैं जो मशीनरीज चलाते हैं। फिर आप स्टोर्स नहीं हैंडल करते हैं, फिर आप स्टॉक्स नहीं हैंडल करते हैं, फिर आप उनको हैंडल करते हैं जो स्टोर्स या स्टॉक्स को मैनेज करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट परसुएडिंग। ये तो सवाल डॉक्टर साहब ने कुछ सेल्स को लेकर के किए थे, लेकिन दुनिया में कौन सा क्षेत्र है जहां परसुएशन के बगैर काम चल जाता है? और अगर वो चल रहा है तो समझ जाइए
कि आदमी 9 to 5 जॉब कर रहा है, इसके जीवन में सक्सेस नहीं होने वाला, इसका मरते मरते रिटायरमेंट होते होते एक 1 BHK का होम हो जाएगा, छोटी सी गाड़ी हो जाएगी, फिर कंप्लेंट मत करना. So if you want to become great in anything that you dreamt of, you and I need to develop what we call persuasion skills. It is already 12 p.m. I must take your leave now. And if there are Yes. any questions, and I'll leave it to Dr. Saab. Dr. Saab, what is your thought? Or if they, I'll take any thought from you, and then we can wind up this session. Yes, But so yes. far, I would like to ask you and also to the participant, जितने भी हमारे साथ रहे हैं, कि क्या अब तक जो बातें हुई हैं इनमें कोई मतलब की बात हुई है, कोई मतलब का मैसेज आपको मिला है? ये जो 1 घंटा आपने जीवन का इस सेशन में डाला है, क्या मीनिंगफुल रहा है? अगर Yes, रहा है so तो मैं पढ़ना चाहूंगा. ये हाँ. डॉक्टर साहब प्लीज go ahead. So, yes, students are writing also here. Yes, it was wonderful. And I know that you guys, students, you have a lot of questions. And Mr. Muley is very active on LinkedIn also. So you can connect with him on LinkedIn and you can ask him questions there also. And I Yes. hope that he will answer them. He has a YouTube channel also. So I have seen some of the videos. You can also watch some of the videos, especially about persuasion and sales, and you can get it there. Two key learnings which I think we have gathered here. One is what a beautiful definition of confidence you have given to us. That confidence is doing the right thing, keeping the promises every single day. And that is absolutely true. Confidence comes with this belief that whatever I want to do to achieve my goal, I am doing that. Once we Yes. start doing that, there is no looking back. And second is you have said that leave the message. What happens nowadays, especially with students, especially with new employees, is that somebody gives them some literature, that this is the literature, this is the content which you have to deliver, and they do not internalize it. It is somebody else's literature, somebody else's content, and that thing will be reflected when you will speak. जी सर, जी सर. These two key messages, although the entire session was full of learning, and thank you very much, Mr. Amol, on the behalf of Jaipur Institute of Management, all of my students and faculty members, from the bottom of my heart, I thank you very much for sharing such invaluable thoughts with us and sharing your precious time with us. Thank you very much. Dr. Saab, before I go, I would want to make one request of all the students who are Yes, here. sir. And also you. मैं चाहूंगा आपने कहा तो है कि भाई चलो इनका LinkedIn है, वहां आप संपर्क में. I would like to be in touch with students, no, and I would like to hear from them stories कि उनके जीवन में क्या हो रहा है और उनकी कोई समस्या है. I would like to help them, and you know, मुझे hundreds of WhatsApp messages आते हैं, email आते हैं, मैं सभी को respond करता हूँ. I always respond. भले ही समय लग जाता है, but without response कहीं पर भी नहीं जाता. ऑल्सो वन रिक्वेस्ट, अभी देखो बहुत लोगों ने यहाँ पर लिखा है, किसी ने लिखा है, ये कोई ऐश्वर्या या अनुष या शिवान ऐसे कुछ नाम दिख रहे, पूरे तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ. उसमें लिखा है कि इंसाइटफुल सेशन था एंड थैंक यू एंड किसी ने लिखा है वी आल्सो लर्न दैट वी हैव टू बी आवरसेल्व्स एंड इट वाज इंडीड अ ग्रेट सेशन. लेकिन मजे की बात देखिए ना डॉक्टर साहब, इनको ये सेशन पसंद आया, इनको ये सेशन अच्छा लगा, इनके जीवन में कुछ आज अच्छा घटा, ये बात इन्होंने इस मंच पे लिखी है. और ये बात केवल 2 ही लोगों को मालूम है, एक वो, दूसरा Yes, मैं. yes. बाहर दुनिया को नहीं पता है कि आज मुड़े साहब ने कुछ ढंग का मैसेज दिया. No, sir. So I will post it on my LinkedIn, tagging you, and most of the students I know are going to comment there also. And the recording of this session will also be on our YouTube channel, which is Jaipuriya Talks, and it will be posted there also. थैंक यू सो मच. और एक वो गूगल पर भी वो रिव्यूज का फैसिलिटी होता है. Yes, yes, sir. Of my company's Liberation Coaches Private Limited, I would want, और मैं humbly request करूंगा आप सबसे कि आप जाएं और वहां पर अपना रिव्यू पोस्ट करें कि आपको इस सेशन से आज क्या मिला. और आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं फिर दोहराता हूँ, आपको मेरी जरूरत नहीं थी सर, आप लोग सब एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं जयपुरिया इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. पिछले कुछ सालों से मैं आप लोगों का नाम बहुत सुन रहा हूँ इंडस्ट्री में, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में ये इंस्टीट्यूट बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और यहाँ के विद्यार्थी
यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत ऊंचा उठेंगे। आप सभी के सपनों के लिए मेरी ओर से तथास्तु। आप सभी के सपने जल्दी जल्दी पूरे हों और वैसे ही हो जैसा आप चाहते हैं, ये मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार।